أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 11واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور کبھی نہ مرنا مگر مسلمان. اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو. حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کی ویاکھیا میں مفسروں کے کچھ قول ہیں. کچھ کہتے ہیں اس سے قرآن مراد ہے. مسلم کی حدیث شریف میں آیا کہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے. جس نے اس کا انوکرن کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کرو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا جیسے کہ یہودی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے. اس آیت میں ان کاموں اور حرکتوں کو منع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے بیچ پھوٹ کا کارن بنے. مسلمانوں کا طریقہ اہل سنت کا مذہب ہے. اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں پھوٹ ڈالنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے. اور اسلام کی بدولت دشمنی سے دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی یہاں تک کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے کارن رات دن قتل کا بازار گرم رہتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی اور یدھگرست قبیلوں کے بیچ پیار دوستی اور محبت کی بھاونا پیدا کر دی. اور تم ایک دوجک کے گار کے کنارے پر تھے، یعنی کفر کی حالت میں
कि अगर उसी हाल में मर जाते तो दोजख में पहुंचते, तो उसने तुम्हें उससे बचा दिया ईमान की दौलत अता करके। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम हिदायत पाओ। और तुम में एक दल ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुराई से मना करें। इस आयत से जायज काम किए जाने और नाजायज कामों से अलग रहने की अनिवार्यता और बहुमत तथा सहमति को मानने की दलील दी गई, और यही मुराद को पहुंचे। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना बेहतरीन जिहाद है, और उन जैसे न होना जो आपस में फट गए और उनमें फुट पड़ गई, जैसा कि यहूदी और ईसाई आपस में विरोधी हुए और उनमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी पक्की हो गई, या जैसा कि खुद तुम इस्लाम से पहले जिहालत के दौर से अलग अलग थे, तुम्हारे बीच शत्रुता थी। इस आयत में मुसलमानों को आपस में एक रहने का हुक्म दिया गया और मतभेद और उसके कारण पैदा करने से मना किया गया। हदीसों में भी इसकी बहुत ताकीदें आई हैं, और मुसलमानों की जमात से अलग होने की सख्ती से मना ही फरमाई गई है। जो फिरका पैदा होता है इस हुक्म का विरोध करके ही पैदा होता है और मुसलमानों की जमात में फूट डालने का जुर्म करता है, और हदीस के इरशाद के अनुसार वह शैतान का शिकार है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। बाद इसके की रोशन निशानियां उन्हें आ चुकी थीं और सच्चाई सामने आ चुकी, और उनके लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन कुछ मुंह उजाले होंगे और कुछ मुंह काले, तो वो जिनके मुंह काले हुए यानी काफिर, तो उनसे जरूर कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हुए? इसके मुखातब या तो तमाम काफिर हैं। उस सूरत में ईमान से मीसाक के दिन का ईमान मुराद है। जब अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सबने बला यानी बेशक कहा था और ईमान लाए थे। अब जो दुनिया में काफिर हुए तो उनसे फरमाया जाता है कि मीसाक के दिन ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए। हसन का कौल है कि इससे मुनाफिक लोग मुराद हैं, जिन्होंने जबान से ईमान जाहिर किया था और उनके दिल इनकारी थे। इकरमा ने कहा कि वो किताब वाले हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले तो हुजूर पर ईमान लाए और हुजूर के तशरीफ लाने के बाद आपका इनकार करके काफिर हो गए। एक कौल यह है कि इसके मुखातब मुर्तद लोग हैं जो इस्लाम लाकर फिर गए और काफिर हो गए। तो अब अजाब चखो अपने कुफ्र का बदला। और वो जिनके मुंह उजाले हुए यानी ईमान वाले कि उस रोज अल्लाह के करम से वो खुश होंगे, उनके चेहरे चमकते दमकते होंगे, दाएं बाएं और सामने नूर होगा। वो अल्लाह की रहमत में हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम ठीक ठीक तुम पर पढ़ते हैं, और अल्लाह संसार वालों पर जुल्म नहीं चाहता और किसी को बेजुर्म अजाब नहीं देता और किसी नेकी का सवाब कम नहीं करता। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अजब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।